السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ نظام ہشتم مکرم جاہ بہادر کا ترکی میں انتقال، میت حیدرآباد لائی جائے گی، سرکاری اعزازات کے ساتھ ہوگی تدفین۔ سکندرآباد وشاکھاپٹنم وندے بھارت ٹرین کا آغاز، وزیر اعظم نے ویڈیو لنک کے ذریعے دکھائی ہری جھنڈی۔ ٹیچرز کے پروموشنز اور تبادلوں کا 2 دن میں جاری ہوگا شیڈیول، 10ویں کے امتحان کے بعد عمل آوری ہوگی، وزیر سبیتا اندر ریڈی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کی سالگرہ کے موقع پر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ عمارت کا ہوگا افتتاح، تعمیراتی کام آخری مرحلے میں، 600 کروڑ روپے خرچ۔ اور کتے کے حملے سے بچنے کے لیے تیسری منزل سے چھلانگ لگانے والا شخص ہلاک، 4 دن قبل فوڈ ڈیلیوری کے دوران پیش آیا تھا سانحہ۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ نظام ہشتم نواب میر برکت علی خان مکرم جاہ بہادر کا کل شب ترکی کے شہر استنبول میں انتقال ہوا۔ ان کی میت حیدرآباد لائی جا رہی ہے۔ منگل 17 جنوری کو میت چومحلہ پیلس خلوت میں رکھی جائے گی، جہاں غسل و کفن دیا جائے گا۔ نماز جنازہ مکہ مسجد میں ادا کی جائے گی اور تدفین مقبرہ آصفیہ مکہ مسجد میں عمل میں آئے گی۔ مکرم جاہ بہادر پر پیش ہے 4TV بیورو کا نظریہ عقیدت۔ نظام ہشتم نواب میر برکت علی خان مکرم جاہ بہادر کا ترکی کے شہر استنبول میں ہفتے کی رات انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر تقریباً 90 سال تھی۔ وہ ایک طویل عرصے سے اپنے ننیال کے وطن ترکی میں مقیم تھے۔ نظام ہفتم نواب میر عثمان علی خان نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اپنے دادا نواب میر عثمان علی خان کے انتقال کے بعد انہیں 1967 میں 8ویں نظام کی حیثیت سے مسند سنبھالی تھی۔ ان کے والد میر حمایت علی خان نواب اعظم جاہ بہادر تھے۔ نظام ہفتم نے اپنے بڑے فرزند نواب اعظم جاہ بہادر کی بجائے بڑے فرزند کے بڑے بیٹے یعنی اپنے پوتے نواب میر برکت علی خان مکرم جاہ کو نظام ہشتم کی مسند عطا کی تھی۔ مکرم جاہ بہادر کے دفتر کے اطلاع کے مطابق ان کی میت ان کے ارکان خاندان کے ساتھ حیدرآباد لائی جائے گی۔ منگل 17 جنوری کو میت چومحلہ پیلس میں لائی جائے گی، جہاں غسل دیا جائے گا۔ میت کو نماز جنازہ اور تدفین کے لیے مکہ مسجد لے جایا جائے گا۔ نماز جنازہ کے بعد تدفین مکہ مسجد کے احاطے میں واقع مقبرے آصف جاہی میں انجام پائے گی۔ ان کے والد کی قبر کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ مکرم جاہ کی والدہ شہزادی در شہوار سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد المجید دوم کی دختر تھی۔ مکرم جاہ بہادر نے گزشتہ اکتوبر کو اپنے ارکان خاندان کے ساتھ استنبول میں اپنی 88 سالگرہ منائی تھی۔ نظام ہفتم نواب میر عثمان علی خان نے انہیں 14 جون 1954 کو اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ انہوں نے ترکی کے شہزادی اسرا سے شادی کی، جن سے انہیں ایک فرزند پرنس عظمت علی خان اور دختر شیخ یار ہیں۔ وہ کچھ عرصے آسٹریلیا میں رہے،
जहां इन्होंने हेलन समन से शादी की, जिनसे इन्हें एक फर्जंद अलेक्जेंडर आजम खान है। इन्होंने एक और खातून मनोलिया ओ नूर से शादी की, जिनसे एक दुख्तर नीलोफर है। मुकरम जहाँ बहादुर की ज़िंदगी में एक और ख़ातून जमीला बोलोरेस आई थी, जिनसे एक और दुख्तर ज़रीन उन्निसा हैं। मुकरम जहाँ बहादुर हैदराबाद के अलावा हिंदुस्तान के कई इलाक़ों और बैरूनी मुल्क कई असासाजात व जायदादों के मालिक थे। इनकी पहली ज़ौजा प्रिंसेस असरा इनके असासाजात की देखभाल करती हैं। शख्सी जायदादों व इमलाक के अलावा मुकरम जहाँ बहादुर नवाब मीर बरकत अली ख़ान बहादुर सिद्दीकी मुख्तलिफ चैरिटेबल ट्रस्ट व तबी इदारों के सरबराह रहे, जिसके ज़रिए बिला लिहाज व मज़हब व आवाम को मुस्तफ़ीद किया जाता था। मुकरम जहाँ फ्रांस के शहर नीस के ब्लाफेट पैलेस में 1933 को पैदा हुए थे। हुकूमत हिंद की जानिब से इन्हें 8वें निज़ाम की हैसियत से तस्लीम किया गया था। 1971 में जब मरकज़ी हुकूमत ने हबीब खां को ख़त्म किया था, तब से मुकरम जहाँ बहादुर बैरूनी मुल्क में ज़्यादा वक्त गुजारने लगे थे। मुकरम जहाँ की वालिदा के नाम से कई खैराती इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें दुर्र शहवार हॉस्पिटल भी शामिल है। आपके बड़े भाई मुखफ़्फ़म जहाँ बहादुर और भावज प्रिंसेस एसन ज़्यादातर लंदन में मुक़ीम रहती हैं। मुकरम जहाँ का इंतकाल हैदराबाद दक्कन की तारीख़ का एक ऐसा मोड़ है जहाँ सिलसिला निज़ाम की मसनत इख्तिताम को पहुँच रही है, इसलिए कि इनके बड़े फर्जंद प्रिंस अज़मत अली ख़ान जो लंदन में रहते हैं, अगर इनकी जानशीन भी बताए जाएं तो क्या हुकूमत हिंद इनकी इस मसनत को मुसल्लमा हैसियत देगी? ये वो सवाल है कि मौजूदा हुकूमत में ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, इसलिए कि 8वें निज़ाम की हैसियत से जिस तरह मुकरम जहाँ बहादुर को हुकूमत हिंद ने तस्लीम किया था, मौजूदा हुकूमत में इनकी जानशीन को 90वें निज़ाम की हैसियत हासिल होना खारिज अज़ इम्कान है। मुकरम जहाँ बहादुर हैदराबाद की अवामी ज़िंदगी से दूर रहे, लेकिन इनके आबा अजदाद की फलाही कामों को जारी रखते हुए इन्होंने खामोश खिदमत अंजाम दी। सियासी हालात कब करवट लेते हैं ये वक्त पर मुनसर है, लेकिन जब दक्कन की तारीख़ लिखी जाएगी, इसमें आखिरी निज़ाम की हैसियत से नवाब मीर बरकत अली ख़ान सिद्दीक़ मुकरम जहाँ बहादुर अपना वजूद बरकरार रखेंगे। रियासत हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर के पोतरे मुकरम जहाँ बहादुर की मौत पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गहरे दुख का इजहार किया है और उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश की। वज़ीर आला ने अपने पैगाम में कहा है कि निज़ाम के वारिस मुकरम जहाँ ने गरीबों के लिए तालीम के शोबे में समाजी खिदमात अंजाम दी हैं। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी आखिरी रसूमात को सरकारी तौर पर अदा करने की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी गई है। इस्तांबुल से उनकी मैयत हैदराबाद पहुंचने के बाद उनके अफराद ख़ानदान के फैसले के मुताबिक जगह और वक्त का तयन करें और इक़दामात किए जाएं। हुकूमत के अक़लियती मुशीर ए.के. ख़ान को अफराद ख़ानदान से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन का वीडियो लिंक के जरिए इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सिलसिले में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, वज़ीर रेलवे अश्विनी विष्णु, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफ़ज़ाइश हैवानात श्रीनिवास यादव, अरकान पार्लिमान डॉक्टर लक्ष्मण बंडी संजय, सदर नशीन वो CEO रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लाहौटी, जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार जैन और दूसरे अहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में इस ट्रेन को संक्रांति त्यौहार का तोहफा करार दिया और कहा कि इससे सियाहत वो तेज़ रफ्तार सफरी ज़रूरियात की तकमील होगी। इन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान तेलंगाना में रेलवे शोबे को काफ़ी तरक्की हासिल हुई है। जारिया माली साल 3048 करोड़ रुपए तेलंगाना में रेलवे की तरक्की के लिए दिए गए हैं, जो गुज़िश्ता के मुकाबले 12% ज़ायद होंगे। गवर्नर, वज़ीर रेलवे और दूसरों ने भी खिताब किया। नुमाइंदे 4TV शेख अब्दुल हफीज़ के मुताबिक इतवार को इस ट्रेन का तजुर्बाती सफ़र रहा, जिसमें सहाफ़ी, चंद स्कूल्स व कॉलेजेस के तुलबा और अहदेदार ने सफ़र किए। ये ट्रेन पीर से अपना तिजारती सफ़र शुरू करेगी।
سوائے اتوار یہ ہفتے میں 6 دن چلے گی۔ ساری ٹرین چیئر کار پر مشتمل ہے، اس میں فلائٹ جیسی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ वंदे भारत एक्सप्रेस एक तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा संस्कृति और साझा विरासत को जोड़ने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी बहुत लाभ होगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, यात्रियों को शुभकामनाएं देता हूं। वंदे भारत ट्रेन की इफ्तिताही तकरीब में वजीर आला के चंद्रशेखर राव गैर हाजिर रहे। मरकजी हुकूमत की तरफ से इनको मदऊ किया गया था। इसके बावजूद वजीर आला दीगर मसरूफियात की वजह से गैर हाजिर रहे हैं। उनकी जगह पर हुकूमत की तरफ से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर टी श्रीनिवास यादव ने नुमाइंदगी की। वाज़ेह है कि बीजेपी की मुखालिफत के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर आज़म के तेलंगाना दौरे के मौके पर उनसे मुलाकात नहीं की और ना ही उनके कोई इजलास में शिरकत की है। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में मोहम्मद महमूद अली को मसूद अली कहकर पुकारा, जबकि रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले किशन रेड्डी ने भी उनका पूरा नाम नहीं लिया, सिर्फ अली कहकर खिताब किया। पूरे प्रोग्राम में वज़रा पेश दिखाई नहीं दिए। वजीर सत्यावती राठौर ने कहा है कि वंदे भारत रेल का इफ्तिताह खुशाइन बात है। इस तरह आंध्र प्रदेश तकसीम बिल के वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी वजीर आजम पर आयद होती है। इन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि सिर्फ वंदे भारत ट्रेन इफ्तिताह करने से किसको फायदा होगा। इन्होंने कहा कि ये पहली ट्रेन नहीं है, इससे पहले 17 ट्रेनों का इफ्तिताह हो चुका है। तेज चलने वाली ट्रेन का आगाज करते हुए इसको तरक्की बताने की कोशिश की जा रही है। ये ट्रेन गरीब और मुतवस्सित तबके की दस्तरस से बाहर है। गाजीपेट रेलवे कोच फैक्ट्री का मुतालबा कई दहाइयों से किया जा रहा है, इस पर मोदी हुकूमत खामोश है। ब्याराम फैक्ट्री को मंजूरी नहीं दी गई। वंदे भारत ट्रेन के रुकने के औकात में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हुई है। राजमंड्री में 2 मिनट, वहीं वरंगल में सिर्फ 1 मिनट का वक्त दिया गया। इन्होंने मुतालबा किया कि वरंगल में 2 मिनट ट्रेन को रुकने के लिए इक़दामात किए जाएं। वरंगल रेलवे स्टेशन पर बीआरएस और बीजेपी के हामियों की नारेबाजी देखी गई। वंदे भारत ट्रेन जब वरंगल स्टेशन पहुंची तो बीजेपी के कारकुनों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, तो दूसरी तरफ बीआरएस के कारकुनों ने देश का नेता कैसा हो, केसीआर जैसा हो के नारे लगाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने टीचर्स को संक्रांति त्यौहार के मौके पर खुशखबरी देते हुए तबादले और प्रमोशन देने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। असातिज़ा तंजीमों के नुमाइंदों का वज़ीर फाइनेंस हरीश राव और वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने कहा कि 2 दिन के अंदर तबादले और प्रमोशन से मुताल्लिक शेड्यूल जारी किया जाएगा। काउंसलिंग के बाद पूरी शफाफियत के साथ तबादले किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि माजी में जिस तरह वेब काउंसलिंग की गई थी उसी तर्ज पर ये किए जाएंगे। पहले हेडमास्टर्स के बाद एक प्रमोशन होंगे। 9,266 के प्रमोशन के लिए शेड्यूल जारी किया जा चुका है। प्रमोशन दिए जाने के बाद भी तुलबा की तालीम पर असर ना पड़े, इसीलिए 10वीं जमात के इम्तिहान के बाद ही इस पर 23 अप्रैल से अमल होगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि मॉडल स्कूल KGVB स्कूल्स के असातिज़ा का भी अहाता किया जाएगा। इन्होंने असातिज़ा से कहा कि किसी भी तरह के शक व शुबहात का शिकार ना हो। वेब काउंसलिंग के जरिए शफाफ अंदाज में तबादले और प्रमोशन किए जाएंगे।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी तमाम तवज्जो 18 जनवरी को होने वाले खम्मम में बीआरएस पार्टी के पहले इजलास आम पर मरकूज किए हुए हैं। इसकी तैयारियों की जिम्मेदारी वजीर हरीश राव को सौंपी गई है। जलसे आम में 5 लाख अफराद को जमा करने की जिम्मेदारी दी गई है। ज़राए के मुताबिक 50 एकड़ अराजी पर यह जलसे आम होगा। इस जलसे आम की शहनशीन पर 200 अफराद के बैठने की गुंजाइश रखी जा रही है। इस जलसे आम में 3 रियासतों के वज़राए आला को मदऊ किया गया है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवंत सिंह मान और केरला के पी विजयन भी होंगे। इसके अलावा साबिक वज़राए आला में अखिलेश सिंह यादव, शंकर सिंह वाघेला, गिरिधर गुमांग भी शामिल होंगे। वज़ीर आला के हमेशा साथ रहने वाले कुमारस्वामी ज़ाती कामों की वजह से शिरकत नहीं कर पाएंगे। वज़ीर आला इससे पहले जलसे आम के बाद मुल्क में सियासी तब्दीलियों के ख्वाहां हैं। इस जलसे आम से दीगर रियासतों के सियासी जमातों से इत्तेहाद का पैगाम देने का उनका फैसला है। इस जलसे में पुलिस को खुसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं कि कोई नाखुशगवार हालात पैदा ना हो। हरीश राव मुसलसिल इसके इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का इफ्तिताह 17 फरवरी को होगा। वज़ीर आला अपनी सालगिरह के मौके पर इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे। सेक्रेटरीट के काम आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं। सेक्रेटरीट की इमारत की तामीर पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सेक्रेटरीट की इमारत के इफ्तिताह को लेकर कई खबरें गश्त कर रही थीं। संक्रांति त्यौहार के बाद किसी भी वक्त इफ्तिताह की तारीख का ऐलान होगा, लेकिन वज़ीर आला ने संक्रांति त्यौहार के दिन 17 फरवरी को इफ्तिताह करने का ऐलान किया है। जुमा की रात को वज़ीर इमारत व शौरा ने तामीरी कामों का 4 घंटों तक जायजा लिया। मेन एंट्रेंस, फाउंटेन, दाखिली सड़कें और दीगर कामों का भी जायजा लेने के बाद कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी गई हैं। नए सेक्रेटरीट की इमारत के इफ्तिताह को लेकर तजस्सुस खत्म हो गया है। 17 फरवरी को इसका इफ्तिताह होगा। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि तेलंगाना की आबादी के मुताबिक तिब्बी शोबे में सहूलियात में इजाफा होना चाहिए। महकमा सेहत में मौजूदा सहूलियात में मजीद इजाफा होना चाहिए। राजभवन में संक्रांति त्यौहार के मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि माजी में भी नसबंदी ऑपरेशन के दौरान 4 खवातीन की मौत वाक़ हुई थी। हाल ही में मलकपेट के अस्पताल में 2 खवातीन की मौत हुई, जिसका अफसोस है। इन्होंने कहा कि वो भी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनके भी कई सवाल हैं। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत के बिल्स ज़ेरे इल्तवा नहीं हैं, उनका वो जायजा ले रही हैं। यूनिवर्सिटी बिल में मौजूद तमाम उमूर का जायजा लेने की ज़रूरत है। ऐसे मामलात में बाद में अदालत एतराज़ करती है। यूनिवर्सिटी में तदरीस और गैर तदरीसी पोस्ट पर तकर्रुरात किए जाने चाहिए। पीपुल्स प्लाजा पर रियासती वजीर तमिलिसाई श्रीनिवास ने पतंगबाजी में हिस्सा लिया और आवाम को मुबारकबाद पेश की। संक्रांति के मौके पर मजहबी रिवायात का एहतमाम किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत में जितने त्यौहार मनाए जाते हैं वो किसी और रियासत में नहीं मनाए जाते। इन्होंने कहा कि तेलुगु आवाम के त्यौहारों के सिलसिले में मजीद शऊर बेदारी की ज़रूरत है। हर साल की तरह इस बार भी पीपुल्स प्लाजा पर संक्रांति त्यौहार मनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि बदलते वक्त के साथ तहजीब और रिवायात भूलते जा रहे हैं। अफसोस की बात है। इस मौके पर खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंद्र भी मौजूद थे। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने निज़ाम हश्तुम नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जा बहादुर के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार करते हुए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की है। फोरम के ज़िम्मेदारान सदर फोरम मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना सैयद अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह शत्तारी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, जनरल सेक्रेटरी फोरम मौलाना सैयद मुनूरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुज्तहिदी, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबदी, मौलाना अबू तालिब अखबारी और दीगर अराकीन फोरम ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि मुकर्रम जा बहादुर की सरपरस्ती में चैरिटेबल ट्रस्ट और दीगर इदारों के जरिए अवामी खिदमात जारी हैं।
सरजमीन वतन में दफन होने उनकी वसीयत वतन अजीज से उनकी मोहब्बत को जाहिर करती है। रैन बाजार के इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद वासिउद्दीन ने इन कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि बेशतर तरक्याती कामों को सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आ चुका है, जबकि माबाकी तरक्याती कामों का इफ्तिताह मुकामी रुकन बलदिया के हाथों हो रहा है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इस सिलसिले में गुत्तेदार सरकारी महकूमेजात के ओहदेदारों के साथ मीटिंग मुनक्किद करके इन कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हर बल्दी डिवीज़न की एक मीटिंग बल्दिया के ऑफिसरों के साथ देखिए। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो कामों की तकमील हो या उसका आगाज़ हो, ताकि लोगों को जो तकलीफ है उसको दूर कर सकें। हमारी दिन रात कोशिश है कि जितने भी इफ्तिताह सदर साहब करे हैं वो तमाम कामों का जायज़ा लेके गुत्तेदारों के साथ, इंजीनियर्स के साथ, बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों के साथ मीटिंग लेके वो कामों को जल्द से जल्द तकमील कराए। शुक्रिया। हैदराबाद की तारीखी नुमाइश अपनी पूरी आबोताब और रौनकों के साथ जारी है। संक्रांति की तातीलात के पेश नज़र हफ्ते की तरह इतवार को भी अवाम की गैर मामूली तादाद नुमाइश में देखी गई। नुमाइश मैदान का वसी मैदान तंग दामनी का शिकवा करता दिखाई दिया। न सिर्फ शहर बल्कि अजला के अलावा दूसरी रियासतों के भी लोग नुमाइश में देखे गए। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के स्टॉल्स, बिलखुसूस राजस्थानी, लखनवी और कश्मीरियों की दुकानात पर गैर मामूली हुजूम देखा गया। खाने पीने की अशिया बिलखुसूस पिस्ता हाउस पर भी लोग हलीम के लिए कतारें बनाए रहे। पिस्ता हाउस के मालिक ने बताया कि रात 9 बजे तक ही हलीम खत्म हो जा रही है। चार दिन कबल स्विगी डिलीवरी रिजवान जो कुत्ते से बचने तीसरी मंजिल से कूदने के सबब जख्मी हो गए थे, वो जख्मों से जानबर ना हो सके। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स में वाक़े लुम्बनी रॉक क्लस्टर अपार्टमेंट में फूड डिलीवरी देने के लिए गए रिजवान पर मकान में मौजूद पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया था। कुत्ते के हमले से बचने के लिए रिजवान तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी, जिसकी वजह से उनके सर पर गहरे जख्म आए। रिजवान को नीम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। 4 दिन कोमा में रहने के बाद वो इंतकाल कर गए। पोस्टमार्टम के लिए लाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रिजवान अपने घर की किफालत करने वाले वाहिद शख्स थे। चंद्रायन गुट्टा पुलिस हदूद के इलाके मिल्लत नगर में एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 17 साल शेख आमिर ने अपने मकान में छत से लटक कर फांसी ले ली। खुदकुशी की वजह मालूम ना हो सकी, ताहम चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया और तहकीकात का आगाज कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। निज़ाम हश्तुम मुकरम जा बहादुर का तुर्की में इंतकाल, मैयत हैदराबाद लाई जाएगी। सरकारी एजाज़ात के साथ होगी तदफीन। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन का आगाज, वजीर आजम ने वीडियो लिंक के जरिए दिखाई हरी झंडी। टीचर्स के प्रमोशंस और तबादलों का 2 दिन में जारी होगा शेड्यूल। 10वीं के इम्तिहान के बाद अमल आवरी, वजीर सबीता इंद्र रेड्डी का ऐलान।
وزیر اعلیٰ کی سالگرہ کے موقع پر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ عمارت کا ہوگا افتتاح، تعمیراتی کام آخری مرحلے میں، 600 کروڑ روپے خرچ۔ اور کتے کے حملے سے بچنے کے لیے تیسری منزل سے چھلانگ لگانے والا شخص ہلاک، 4 دن قبل فوڈ ڈیلیوری کے دوران پیش آیا سانحہ۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔